Okay. So today we are going to study our next poem, that is "The World is Too Much with Us," which is written by William Wordsworth. Okay. So basically, before going to discuss that poem, we must have some idea about Wordsworth and his period. So Wordsworth belongs to Romantic period. Okay. Romantic period. So Romantic period starts from 1798 to 1837. Okay. Here two both the dates are very important. 1798. Basically, in the last class I had discussed there was a transition phase from neoclassicism to romanticism. Okay, means there was a shift in writing from the neoclassical methodology or structure to new. So we will discuss in the last class I had discussed as a transitional phase or transition poets. So today we are going to discuss Romantic period. Under this Wordsworth will come. So basically this period starts with a book published by William Wordsworth. Okay, William Wordsworth. This book name is Lyrical Ballads. Lyrical Ballads. It's a long poem book. Okay, having 3 chapters like that. So in this book, he started writing poetry and he wrote many poems along with S.T. Coleridge. S.T. Coleridge. It's a new name for you. S.T. Coleridge, generally is called as Coleridge. So he wrote, William Wordsworth wrote many poems along with S.T. Coleridge and published that book. Okay. एक्चुअल में एक पोएम में दो लोग मिलकर के नहीं लिखे हैं, दोनों लोग अलग अलग पोएम लिखे, इसके बाद उसको आपस में शेयर किए, डिस्कस किए, इसके बाद कंपाइल करके बुक एक ही है जिसमें दोनों लोग की पोएम है. जैसे लिरिकल बैलेट्स है, इसकी जो ओपनिंग है पहला ही अगर पोएम देखें तो दैट पोएम इज रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज. उस बुक का नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. ये बहुत फेमस बुक है, हो सकता है आपकी सिलेबस में हो आगे. ठीक है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा. यहाँ से स्टार्ट होता है और विलियम वर्ड्सवर्थ की बुक है पोएम है टिंटन अब्बे. इस पे खत्म होती है. ठीक है. सो इन दिस बुक ही रोट पोएट्री नियर टू नेचर और इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल और यू कैन से न्यू क्लासिकल पोएट्री. How it was differing, so that becomes the characteristics of romantic poetry or romantic period. So we will have some knowledge about romantic poetry or romantic period. Okay. Tinton, Tinten, टिंटन अब्बे. ठीक है, ABBEY. ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि लिटरेचर में बहुत सारे लिटरेरी पीरियड्स हैं जिसमें से एक है रोमांटिक पीरियड. ओके, इसमें क्या था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप देखेंगे तो आपके बुक्स में भी लिखा होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो लेट्स हैव सम आइडिया. बेसिकली अगर आप देखें इससे पहले कि जो पोएट्स थे, जो लास्ट क्लास में थॉमस ग्रे का नाम हमने लिया था, रॉबर्ट बर्न्स का नाम लिया था और जेम्स थॉमसन थे. ठीक है, सो मेनी अदर पोएट्स हु वर कॉल्ड एज transitional poets, or they were also called as pre-romantic period poet. Okay, or that period was called as pre-romantic period. So there was a shift in writing pattern also. So that period was called as transition phase or transitional. They were called as transitional poets. But with the publication of this book, Lyrical Ballads, which ran up to 1837, this period is marked in literature as romantic period. Okay, because so many writers started writing in different way or they broke the conventional methods or conventional themes and structure or rules of neoclassical writing. neoclassical जो लिख रहे थे उसको उन्होंने धीरे धीरे हटा दिया उन चीजों को और एक नई तरीके से लिखना शुरू किया पोएम को.
और जो नए तरीके से लिखा वो एक सारा लोग एक साथ मिल करके लिखना शुरू कर दिए और एक नए एरा का उदय हुआ और उसे कहा गया रोमांटिक पीरियड। ओके, सो वी विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। यहाँ तक क्लियर है? ये जो रोमांटिक पीरियड आया है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां रही हैं, लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट रहा है इसमें। हम उतना डीप में नहीं जाएंगे उसमें। इतना पता होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? एनीवन? नो, 1789। 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज इन 1789। ठीक है, इसे फ्रांस की क्रांति कहा जाता है। और वहाँ पे इस क्रांति में जो पुअर या लेबर वर्ग था या फार्मर्स ग्रुप, ये सारे लोग अटैक कर देते हैं राजा के ऊपर, मतलब जो राजशाही थी उस व्यवस्था पे, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ फॉर्म करते हैं। लुई 16, ओके, लुई 16 था राजा वहाँ पे। ठीक है, उसी की वाइफ एंटोनियो होती है, और वो जब लोग उसको पास खाने वाने के लिए जाके मैसेज देते हैं कि भाई खाने के लिए नहीं है, कुछ कीजिए राज्य में, तो उसकी एक लाइन बड़ी फेमस कही जाती है कि मतलब लोग कहते हैं कि हमारे पास ब्रेड नहीं है, ब्रेड मतलब रोटी के लिए वहाँ पे, अब यहाँ रोटियाँ चलता है वहाँ ब्रेड चलता है, कि वी नॉट हैव ब्रेड। तो कहती है कि इफ यू आर नॉट हैविंग ब्रेड गिव देम केक्स, टेल देम टू ईट केक्स, कि मतलब ब्रेड नहीं तो केक खाओ। ठीक है, अब केक मांगा कि ब्रेड मांगा है, तो जो आदमी ब्रेड नहीं खरीद सकता है, तो ये मतलब दिखाया गया है कि रानी ने ऐसा कहा नहीं किया मुझे नहीं पता, बट ऐसा लिखा मिलता है। ठीक है, कि रानी की फुलिशनेस को दिखाया गया इस तरीके से कि राजा और रानी इतने बेखबर थे राज्य से, तो लोगों ने लास्टली अटैक कर दिया, और बेस्टिल एक फोर्ट होता है, उस फोर्ट पे अटैक करते हैं, और वहां से फिर क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, क्रांति क्या है? बेसिकली देयर इज आइडियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, बहुत जब मास में चेंजेस होता है तो क्रांति होती है वही। ठीक है, सो लेट अस सी हियर इन लिटरेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड। ठीक है, रोमांटिक पोएट्री कह सकते हैं या पीरियड, जो भी है, दोनों एक ही बात है। जो पोएट्री लिखी गई उसका, और पीरियड जो था उसमें बहुत सारे लिखे गए, नॉवेल्स वगैरह भी लिखे गए, बट इट वाज मोर फोकस्ड ऑन पोएट्री। सो फर्स्ट वन इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। Okay, what is this? Glorification of nature. If you see the background of this era, you find there was a lot of changes. Basically, industrial revolution, which is also called as first industrial revolution, that started in 1750s and ran up to 1820s 40s. Means 1750-60 से स्टार्ट हुआ एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से औद्योगिक क्रांति कहते हैं, सुना है नाम? ठीक है, मतलब उसमें औद्योगिक विकास बहुत तेजी से किया गया, बहुत सारी मशीनें लगाई गई और बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, उससे क्या हुआ? मेटेरियलिज्म बढ़ गया देश में, मतलब पूरे यूरोप में मेटेरियलिज्म बढ़ गया। मेटेरियलिज्म मतलब है जो भौतिकवाद जिसे कहते हैं, कि भौतिक चीज़ों से लोगों को जुड़ाव ज़्यादा होता चला गया, और जो नेचुरल चीज़ें थी, ठीक है, जो नेचुरली चीज़ें थी जो आपको प्लेजर दे रही थी या जो नेचुरली चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जैसे आज भी देखेंगे तो जंगलों काट करके वहाँ कई जगह नई जगह फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, कोल माइंस खोदे जा रहे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरीके से यूरोप में पूरा बहुत तेजी से किया गया, और ये 1750 से स्टार्ट हुआ और जो कि 1840s तक चला। तो ये पीरियड कहा जाता है फर्स्ट रिवोल्यूशन या सिंपली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, स्टार्ट हुआ इंग्लैंड से, लेकिन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो जाए, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि स्पिरिचुअलिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब है अटैचमेंट विद नेचुरल थिंग्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं किसी जंगली एरिया में या पहाड़ी एरिया में, तो आपको अगर नेचर को देख करके खुशी फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू आर मोर मेटेरियलिस्टिक देन स्पिरिचुअल। ठीक है, तो लोगों को
उस समय का जो माहौल था, धीरे धीरे लोग इतना बदल चुके थे कि लोगों का नेचुरल चीजों से लगाव कम होता जा रहा था। इस चीज को ऑब्जर्व किया कुछ राइटर्स ने और उन्होंने नेचुरल चीजों को ही मेन सब्जेक्ट बनाया और उससे अटैचमेंट या उनसे अपना जो जुड़ाव था उसको पोएट्री के माध्यम से एक्सप्रेस किया, और यही एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है रोमांटिक पीरियड का। सो फर्स्ट वन इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। ठीक है, एन कैपिटल लिखिएगा हमेशा जब नेचर लिखिएगा यहाँ पे। ये नेचर जो आप जिसे ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उस चीजों के लिए है। सो फर्स्ट वन इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिंग इमेजिनेशन। इसमें जो अगर इफ यू सी न्यू क्लासिकल पोएट्री, न्यू क्लासिकल में क्या था, एक सेट ऑफ रूल्स था जो अगस्टाइन के पीरियड में जो लिखा गया था उसको फॉलो कर रहे थे। यानी जो पोएट्री था, कौन से पोएट्री किस फॉर्म में लिखी जानी, कौन से मीटर में लिखा जाना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर होना चाहिए, सारा प्रॉपर फॉलो करते थे। यहाँ पे वो सारी चीजों को तोड़ देते हैं और ये अपने इमेजिनेशन के थ्रू, ठीक है, इसको लिखना शुरू कर दिए। तो इसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है यहाँ की पोएट्री में। पहले वाले में इमेजिनेशन कम है। ठीक है, अगर आप जॉन डन की पोएट्री पढ़िए, ठीक है, उसमें इमेजिनेशन आपको नहीं मिलेगा। या आपने पोप की पढ़ी, इससे पहले पोप की पढ़ी थी, अलेक्जेंडर पोप की, ठीक, एशियन मैन था, तो कोई इमेजिनेशन की बात नहीं करता उसमें। ठीक है, लेकिन इस तरह की पोएट्री में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग इमेजिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, सेलिब्रेशन ऑफ मेलंकली। ठीक है, मेलंकली मतलब दुख या कष्ट। ओके, मेलंकली मीन्स दुख या कष्ट। पहले जो दुख होता था, लोग दुख को दुखी हो जाते थे उससे, अब इस चीज को सेलिब्रेट करने लगे लोग। ठीक है, इस पीरियड में सेलिब्रेट करने लगे। एक तरह से वैसे ही सेलिब्रेट का मतलब है कि अब कोई ये लेकर के गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेशन नहीं, मतलब उससे उतना ज्यादा परेशान नहीं हुए। ठीक है, उसको ऐसे नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लेकर के चलने लगे। ये बात सबको पता है ना कि सबके जीवन में दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, सभी को पता है कभी न कभी हम बीमार होंगे। ठीक है, जब अगर ये चीज आपके दिमाग में प्रॉपर सेट हो जाए तो कभी अगर आप बीमार होंगे तो दुख होगा। लेकिन होता क्या है, दिमाग में हमारा इस तरह से ऐसे सेट कर दिया जाता है पहले से ही, बचपन से, कि अगर कोई बीमार हो गया या किसी घर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो लोग बोलेंगे अरे कुछ गड़बड़ किया होगा ये, इसीलिए देखो इसी का आता हुआ है। ठीक है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, कभी न कभी तो किसी न किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, टकरा सकता है किसी से, नेचुरल पार्ट है ये। लेकिन वहां लोग क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे, अरे ये कुछ न कुछ खुराफात किया होगा पहले का, उसी का परिणाम निकल रहा है। ठीक है, सो इस चीजों को ये लोग रिजेक्ट करते थे। ये लोग बोले नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दैट वन। ठीक है, पोएम के माध्यम से, अकेले हैं, आइसोलेशन को। ठीक है, सो मेलंकली एंड आइसोलेशन दोनों लिख लीजिए अगर लिखना है तो। आइसोलेशन मतलब एकांतवास, कि अगर अकेले कहीं गए, पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, पहाड़ी पर, ठीक है, झरनों को देख रहे हैं, झीलों को देख रहे हैं। आप लोगों ने शायद डैफोडिल्स पढ़ा होगा, डैफोडिल्स पोएम था ना वर्ड्सवर्थ की, नहीं रहा होगा, एसएससी बोर्ड वगैरह में तो था शायद, यूपी बोर्ड वगैरह में, पता नहीं, चलिए ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। सो वहां पे वो फूलों को देख करके खुश होता है, ऐसा लग रहा है जैसे फूल उससे बात करें, डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं। यहाँ पे मेलंकली को भी मेलंकली एंड आइसोलेशन बोथ आर बीइंग सेलिब्रेटेड थ्रू देयर पोएट्रीज। ओके, देन इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि अकेले। एक होता है पोएट्री सब्जेक्टिव कहते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोएट्री होती है जो दूसरे किसी थीम पे लिखी जाती है। सब्जेक्टिव जो खुद के हिसाब से, खुद के थीम होती है उसके ऊपर लिखी जाती है, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। सो इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी
सब्जेक्टिविटी, ये दोनों जो है यहां पे पाई जाती है। इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्ति का अपने हिसाब से जिंदगी को देख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं उसको, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट वाज मोर टॉकिंग अबाउट द आइडियलिज्म ऑफ वीमेन। आइडियलिज्म ऑफ वीमेन, जो वीमेन है इस पीरियड में उनको आइडियलाइज किया गया, उनको सेलिब्रेट किया गया, मतलब उनको तारीफ काफी की गई इस तरह की पोएट्रीज में। सो आइडियलिज्म ऑफ वीमेन ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस समय का, इमोशन एंड यूज ऑफ इमोटिव लैंग्वेज। ओके, जो इमोशंस थे पहले की जो पोएट्री देखेंगे, इससे पहले न्यू क्लासिकल में हम लोग क्या पढ़े थे उसे कैरेक्टरिस्टिक में, इट वाज विट्टी, इट वाज मेड फॉर एलिट क्लास और इंटेलेक्चुअल पीपल। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल के लिए नहीं, एकदम फॉर कॉमन मैन। ओके, वर्ड्सवर्थ ने तो यहाँ तक लिखा है वी मस्ट यूज द वर्ड्स आर डिक्शन, जिसको हिंदी मतलब इसमें कहेंगे डिक्शन, भाषा, कि जो आपका डिक्शन हो वो इतना हो, उसको उन्होंने कहा है कि रस्टिक लैंग्वेज होना चाहिए, कि तो गांव की भाषा होना चाहिए, ताकि आपकी जो पोएट्री है या आपकी जो बातें हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और समझ में आए उनको। और इस तरह का नहीं होना चाहिए न्यू क्लासिकल की तरह कि उनकी जो पोएट्री है वो केवल इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ पे उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे इमोशन और यूज ऑफ इमोटिव लैंग्वेज, ठीक है। फिर यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। ओके, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लोगों की भाषा को यूज किया गया, बहुत हाई फाई वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। जबकि अगर आप देखें इससे पहले जॉन डन या और जो पीछे की पोएट्रीज हैं वो काफी इंटेलेक्चुअल लिखी जाती थी, मतलब वो बड़े समझदार लोगों के लिए समझ में आती है, आम आदमी की समझ में नहीं है। पहली बार आप पढ़िए जॉन डन की पोएम तो सिर से उड़ जाता है, ठीक है। फिर 2-3 बार जब पढ़िए तब समझ में आता है कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज मेड फॉर एलिट क्लास और यू कैन से फॉर इंटेलेक्चुअल, इट वाज मोर विट्टी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, सो इट इज यूजिंग कॉमन मैन लैंग्वेज या कॉमन पीपल। और इनके जो थीम्स थे इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन नेचर और कॉमन मैन। जो थीम्स थी, सब्जेक्ट या थीम कहेंगे की बात, ठीक है। सो सब्जेक्ट मैटर, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा, हाँ, कॉमन फॉर मासेस, ठीक है। कॉमन होगा और मासेस के लिए होगा, इस तरह का जो थीम्स थे। थीम्स में जो मेजर थीम है लव विथ नेचर, लव विथ इंडिविजुअल। एक लाइन में अगर पूरे रोमांटिक पोएट्री को कैरेक्टराइज किया जाए, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा लव विथ द सेल्फ, लव विथ द नेचर, लव विथ द ह्यूमैनिटी, ठीक है, या लव विथ द सोसाइटी। एक लाइन में अगर पोएट्री ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक को समराइज किया जाए तो रोमांटिक पोएट्री के, यू विल फाइंड लव विथ द सेल्फ दैट कम्स अंडर योर इंडिविजुअलिज्म, मेलंकली सब आ जाएगा उसी में, सेल्फ के लिए, ठीक है। देन लव विथ नेचर, ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर, ठीक है। अगर आप कभी देखेंगे गार्डनिंग वगैरह किए होंगे तो अगर आप फूलों को बार बार पानी दे रहे होंगे, उसकी सेवा वगैरह कर रहे होंगे, तो आपको एक अटैचमेंट सा फील होता है, और उसमें फूल वगैरह निकलते हैं तो आपको एक अंदर से प्लेजर फील होता है, खुशी फील होती है, ठीक है। ये जो प्लेजर है इसी को नेचर का प्लेजर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्लेजर को ये लोग अपनी पोएट्री में लिखे हैं। कोई झरना देख रहा है, कोई नदी देख रहा है, कोई पहाड़ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, उसको लिख करके लिख रहे हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। सो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे जो कॉमन पर्सन के लिए है और मासेस के लिए है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था, इट वाज फ्री फ्रॉम प्रीवियस और न्यू क्लासिकल, समझ लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है।
नियो क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, पोएट्री लिखने के लिए जो नियो क्लासिकल ने तमाम रूल्स फॉलो कर रहे थे पहले वाले, नियो क्लासिकल किसको फॉलो कर रहे थे? क्लासिकल पीरियड को, और यू कैन से अगस्टाइन पीरियड को। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो यानी अगर आप कोड लिख रहे हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर मीटर होना चाहिए, हर चीज। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर मीटर भी मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मिलेगा, और हो सकता है कि ना भी मिले, ब्लैंक वर्स भी मिले। ठीक है, ब्लैंक वर्स मतलब है नो मीटर नो राइम। ठीक है, फ्री वर्स भी मिले। ब्लैंक वर्स में तो मीटर रहता है, फ्री वर्स में कुछ नहीं रहेगा, नो मीटर नो राइम, और उसमें मीटर बट नो राइम। सो यहाँ पे फ्री फ्रॉम प्रीवियस रूल्स और कन्वेंशनल रूल्स। तो ये सारी चीजें मिल करके एक नई विधा को जन्म दिया, या नए एरा को जन्म दिया पोएट्री की राइटिंग में, और उसे रखा गया नाम क्या? रोमांटिक पीरियड। ठीक है, यहां तक क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स? कुछ और छूट रहा हो तो देख लीजिए बुक वगैरह में, आपके बुक में दिया होगा। हाँ, एक और चीज इसमें है, लिखेंगे नहीं, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी लिख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी मीन्स दीज राइटर्स वेर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी मतलब बेसिकली ना समझिए कि जो आप पूजा कर रहे हैं बैठ करके, या जा करके वर्शिप प्लेसेस पे पूजा कर रहे हैं या वर्शिप कर रहे हैं, वो सबसे नहीं मतलब होता है। स्पिरिचुअलिटी से मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर आपके सामने समाज बर्बाद हो रहा है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप उसको सोच करके बहुत व्यथित हैं। ठीक है, मैन काइंड के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉर देयर वेलफेयर। उसको अब इनको क्या दुख था कि इतना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, लोग मतलब भागम भाग मचा रखे हैं, किसी की जिंदगी में शांति नहीं महसूस हो रहा है। तो वो जो सोचना है, ठीक है, कि लोगों का जीवन स्थिर रहे, शांत रहे, स्टेबल रहे, वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूजा पाठ को नहीं फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो स्पिरिचुअलिटी मतलब डज नॉट मीन हियर दैट वर्शिपिंग टू गॉड, या बिलीविंग इन गॉड, और दैट इज देयर, बट दैट इज इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इस तरह की स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे देखी जाती है इन तरह की पोएट्री में। मीन्स दे मेडिटेट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए मेडिटेट करते हैं, ये जो फीलिंग है वो स्पिरिचुअलिटी है। ओके, ओके, एक ये लोग की और फिलोसॉफी चलती थी, जिसे हालांकि बाद में डेवलप किया गया है, नाम बाद में दिया गया। इनका यह था कि जो पोएट्री है ये इट इज फॉर एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, पोएट्री है जो इट इज फॉर एस्थेटिक प्लेजर। और पोएट्री की जो डिफिनीशन थी, वर्ड्सवर्थ ने अलग से एक नई डिफिनीशन दिया इसी समय। अगर आप चाहें तो नोट करना तो नोट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग एक और चीज समझ लें, जो रोमांटिक पीरियड है, ठीक है, स्टार्ट हुआ वर्ड्सवर्थ से, कोलरिज से। सो दे आर कॉल्ड एज ओल्डर जनरेशन पोएट, ओल्डर जनरेशन। इसके बाद न्यू जनरेशन पोएट्स, न्यू जनरेशन पोएट्स, जिसको रिवोल्यूशनरी पोएट्स भी कहते हैं। ओके, न्यू जनरेशन पोएट्स और ओल्डर जनरेशन पोएट्स। अगर आप पूरे रोमांटिक पीरियड को पढ़ेंगे, हालांकि समय बहुत कम है, बहुत कम साल है, देखिए 2 साल इधर, 37 ईयर, 39 ईयर्स था, बट इसमें जो राइटिंग भी बहुत पावरफुल रही है। सो मोस्ट पावरफुल इज विलियम वर्ड्सवर्थ, देन एस.टी. कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, थर्ड इज रॉबर्ट साउदी। ठीक है,
ध्यान दीजिए इधर सभी लोग, वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज, रॉबर्ट साउदी, ठीक है, ये तीनों राइटर लेक पोएट्स कहे जाते हैं। क्या चीज कहे जाते हैं? लेक। हाँ, लेक मीन्स झील, ठीक है। ये लोग लंदन से दूर जा करके, और जिस एरिया का नाम, उसका नाम इसके लिए कम्बरलैंड शायद कहते हैं उसको, ठीक है, उधर लेक्स बहुत थे, वहीं पर लोग रहे और वहीं पर अपना पूरा जीवन गुजारे, सिटी लाइफ से दूर एकदम, ठीक है। जो नेचर के करीब रहेगा उसको नेचुरल चीजों में प्लेजर मिलेगा, एस्थेटिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये लोग रहने लगे, तीनों बहुत फास्ट फ्रेंड थे, ठीक है, रॉबर्ट साउदी, एस टी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ, इन तीनों को कहा जाता है लेक पोएट्स। सो समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लेक पोएट, या हु अमंग द फॉलोइंग इज लेक पोएट, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, देखो एमसीक्यू अलग से नहीं होता है, इन्हीं सबसे पैदा किया जाता है। सारा ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप कर लेंगे अपने आप ही, ठीक है। सो जो फिर इसके बाद इनको फॉलो किया कुछ नए राइटर्स ने, जिसमें मुख्य हैं जॉन किट्स, ओके, जॉन किट्स की अगली पोएम है आपके सिलेबस में। देन लॉर्ड बायरन, ओके, नहीं, देन पीबी शेली, ओके, पीबी शेली। ये तीन पोएट्स, वैसे और भी इनके अलावा रहे हैं, लेकिन ये जो मेजर है उनके नाम हम बता रहे हैं। लेक पोएट्स में तीनों रहे हैं, जिनको ओल्डर जनरेशन पोएट्स कहा जाएगा, जिन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद इनको फॉलो किया जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शेली, ये यंगर जनरेशन पोएट्स कहलाए जाते हैं। ये सारे रोमांटिक पीरियड के ही पोएट हैं, ठीक है। सो पोएट्री की डिफिनीशन उस समय वर्ड्सवर्थ ने दिया, और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना है लिख लीजिए, ऐसा आपके बुक में भी दिया है। पोएट्री की डिफिनीशन पहली बार वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन करके दिया। पोएट्री इज spontaneous overflow of powerful emotions, powerful feelings, ठीक है, पावरफुल फीलिंग्स, कामा दिया। It takes its origin from feelings recollected in tranquility, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है एकदम शांत क्षण। मतलब इनके हिसाब से जो पोएट्री है पावरफुल इमोशंस है, ठीक है, और वो इमोशंस कैसे आया? शांत क्षणों में आया है, ठीक है। सो पोएट्री इज spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. ये डिफिनेशन दिया, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने दिया पोएट्री का। सो ये वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड को बिलोंग करते हैं, और उनके समय में जो पोएट्री लिखी गई दैट हैज सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द प्रीवियस वन, और यू कैन से न्यू क्लासिकल पीरियड। और इस तरीके से एक नया लिटरेरी एरा स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रोमांटिक पीरियड, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।